हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन है वो 20 ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किसका इंटरव्यू में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि क्या होगा। डिफाइन टैबलेट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर इज डिफाइन टैबलेट पूछ देगा। आपको क्या बताना है? टैबलेट इज अ सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्या है टैबलेट? सॉलिड डोजेज फॉर्म है, हार्ड है। इट कंटेन द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज शॉर्ट फॉर्म इज एपीआई along with the excipients. Okay, that is called tablet. Okay, next second question नंबर क्या पूछ सकता है? define API. अब API क्या होता है? API known as active pharmaceutical ingredient. It is the first and important ingredient in any drug formulation. कोई भी ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। It is a biological active component responsible for the drug effect, that is called API. Okay, next third question नंबर देखते हैं। क्या पूछ सकता है? एक्सप्लेन कीजिए वाटर फॉर इंजेक्शन। द शॉर्ट फॉर्म इज WFI बोल सकता है वो। इसका आंसर आप क्या बता सकते हैं? प्यूरिफाइड वाटर विदाउट एनी पैरोजन। प्यूरिफाइड वाटर विदाउट एनी पैरोजन मतलब पैरोजन उसमें नहीं होना चाहिए, प्यूरिफाइड वाटर होना चाहिए। प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन। किससे प्रिपेयर्ड होना चाहिए? डिस्टिलेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड वाटर फॉर इंजेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर। नेम एनी 3 टैबलेट प्रोसेसिंग प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन इट। कोई भी 3 टैबलेट प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम जो आता है वो आप एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। आप क्या बताइएगा? फर्स्ट मोटलिंग, सेकंड कैपिंग, थर्ड लेमिनेशन। मोटलिंग क्या होता है? अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टैबलेट, दैट इज कॉल्ड मोटलिंग। कैपिंग इज पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ अ टैबलेट टॉप और बॉटम क्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड कैपिंग। एंड लेमिनेशन इज सेपरेशन ऑफ टैबलेट्स into 2 or more layers, that is called lamination. Okay, next 5 question number. What do you mean by DQ, IQ, OQ and PQ? DQ means क्या हो सकता है? Design qualification, that is called DQ. The DQ is documented verification that the proposed design of the facilities, equipment or system is suitable for the intended purpose, that is called design qualification. And IQ is installation qualification, documented verification that the equipment or system are installed or modified and comply with the approved design of the manufacturer recommendation and or user requirements, that is called installation qualification. Okay, the next is OQ. Okay, OQ is operational qualification, that is the operation qualification, documented verification that the equipment or system are installed or modified and perform as intended throughout the anticipated operation range, that is called operational qualification. Okay, next is PQ. PQ is performance qualification. The performance qualification is documented verification that the equipment and ancillary system are connected and can perform effectively and reproducibly based on the approved process method and specification, that is called performance qualification. Okay, next is 6th question number. 6th question number is प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है? डिफाइन कीजिए। द प्राइमरी पैकेजिंग कंसिस्ट ऑफ, किसको कंसिस्ट किया जाता है? दोज पैकेजिंग कंपोनेंट्स व्हिच हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद प्रोडक्ट। जो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है किसके साथ? प्रोडक्ट के साथ। वो क्या हो सकता है? बोतल,
cap, cap liner and label etc. That is called primary packaging. The secondary packaging mainly provides the additional physical protection necessary to ensure the safe warehousing and for refill packaging. That is called secondary packaging. Okay. Next is 7 question number. How many methods of sterilization? कितना मेथड्स है sterilization का involves in pharmaceutical plant में? Pharmaceutical plant में sterilization का कितना मेथड है? तो ये है 6 मेथड. फर्स्ट physical method, second thermal heat method, and third is radiation method, fourth is filtration method, fifth is chemical method, and sixth is gaseous method. That is the 6 method of sterilization method. Okay, in pharmaceutical plant. Next is 8 question number. Write down the tablet manufacturing process. First, wet granulation, second, dry granulation, and third, direct compression. इसका ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसका? टैबलेट का. ओके, द आंसर इज वेट ग्रेनुलेशन, dry granulation and direct compression. Okay, next is 9 question number. What are the difference between ointment and cream? क्या है डिफरेंस ointment में और cream में? फर्स्ट जान लेते हैं. एंड ointment is 80% क्या होता है? ऑयल होता है, तेल, एंड 20% क्या होता है? वाटर. किसमें? ointment में. एंड सेकेंड क्रीम में देखते हैं 50% क्या होता है? ऑयल होता है, और 50% क्या होता है? वाटर होता है. किस में होता है? क्रीम में होता है. ओके, नेक्स्ट ऑइंटमेंट जो होता है वो एन इमल्सन ऑफ वाटर और ऑयल, और क्रीम जो होता है इमल्सन ऑफ ऑयल बाय वाटर. ओके, ठीक. थीन ऑइंटमेंट हैज वेरी मॉइस्चरिंग इफेक्ट प्रीफरेबल फॉर ड्राई स्किन. जो ड्राई स्किन होता है वो ऑइंटमेंट वेरी मॉइस्चर होता है, वो लगाया जाता है ड्राई स्किन में. एंड क्रीम जो होता है मॉडरेट इन मॉइस्चरिंग, प्रीफर फॉर मॉइस्ट स्किन. मॉइस्ट स्किन पे इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर. व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस टैबलेट हार्डनेस? तो क्या क्या इसका फैक्टर्स होता है हार्डनेस के लिए? टैबलेट जो हार्डनेस होता है, फर्स्ट जो होता है कंप्रेशन फोर्स. जो कंप्रेस किया जाता है कंप्रेशन मशीन से, वो फोर्स कितना लग रहा है. अगर हार्ड ज्यादा कर रहा है तो उसमें फोर्स ज्यादा लगाया जाता है, तब वो हार्ड होता है. तो फर्स्ट इज कंप्रेशन फोर्स, सेकेंड इज बाइंडर क्वांटिटी, मोर बाइंडर मोर हार्डनेस, एंड थर्ड इज मॉइस्चर कंटेंट. ओके, दैट इज द 3. ओके, नेक्स्ट इज 11 क्वेश्चन नंबर. इफ स्टिकिंग ऑब्जर्व ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन. अगर स्टिकिंग प्रॉब्लम हो रहा है, चिपचिपा टाइप से हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं कंप्रेशन के टाइम, टैबलेट जब कंप्रेशन करने के लिए जा रहा है और चिपचिपा हो रहा है, तो व्हाट मे द प्रोबेबल रीजन फॉर द सेम. अब क्या रीजन है कि वो चिपचिपा हो रहा है? तो फर्स्ट हम देखेंगे कि इफ द ग्रेनुलेशन आर नॉट ड्राइड प्रॉपर्ली, ये अच्छे से ग्रेन्यूल्स जो है वो ड्राइड नहीं हुआ था, स्टिकिंग कैन अकर्स, इसलिए वो उत्पन्न हो रहा है. टू लिटिल इन इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, एंड थर्ड इज टू मच बाइंडर, एंड फोर्थ इज हाइड्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स. They are the 4 reasons. Okay, next is 12 question number. What are the basic difference between elixir and suspension? Basic डिफरेंस क्या है एलिक्सिर और सस्पेंशन में? एलिक्सिर क्या होता है? इन एन एलिक्सिर द एक्टिव इंग्रेडिएंट आर मिक्स्ड विद लिक्विड, यूजुअली अ काइंड ऑफ सिरप, अल्कोहल, इन विच दे कैन डिसॉल्व. किसमें डिसॉल्व होता है? लिक्विड में मिक्स होता है. किसमें? सिरप में, अल्कोहल में, दे कैन डिसॉल्व. ओके, देन सस्पेंशन की बात करें, द मेडिसिन इज मिक्स्ड विद अ लिक्विड, ये भी होता है यूजुअली वाटर के साथ, in which it cannot dissolve, therefore remains intact the form of small particles. The important thing remember that is that you have to shake a suspension before giving each dose so that the medicine particles are evenly distributed throughout the liquid. ये सस्पेंशन आप
बच्चा का जो ड्रॉप होता है उसमें भी आता है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, जिससे फैक्सिम आता है, ऑफ्लोक्सासिन के लिए आता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज क्लीन रूम एंड एसेप्टिक एरिया। क्लीन रूम एंड एसेप्टिक एरिया क्या है? क्लीन रूम और एसेप्टिक एरिया। क्लीन रूम क्या है? अ रूम इन विच द concentration of airborne particles is controlled to meet a specified air particulate cleanness class. In addition, the concentration of microorganisms in the environment is monitored. Is cleanness class defined is also assigned a microbial level for air, surface and personal gear, that is called clean. Okay, then aseptic area is any area in an aseptic process system for which airborne particulate and microorganism levels are controlled to a specific level appropriate to the activities conducted within that environment, that is called aseptic area. Okay, next is 14 question number. Which type of water sterile preparation? Which type of water sterile preparation? The answer is water for injection bulk. कैरेक्टर इसका जो होता है वो क्लियर, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। ओके, किस टाइप का? वाटर फॉर इंजेक्शन बल्क में इसका ऑर्डर जो होता है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस, colorless and tasteless. Okay, next is 15 question number. Define strip package and blister package. इसको डिफाइन कीजिए, स्ट्रिप पैकेज और ब्लिस्टर पैकेज को। स्ट्रिप पैकेज क्या होता है? हैव एट लीस्ट वन सील्ड पॉकेट ऑफ मटेरियल with each pocket containing a single dose of the product. The package is made of two layers of film or laminated materials, that is called strip package. Next is blister package. Blister packages are composed of a base layer with cavities called blister, which contain the pharmaceutical product and a lid. This liquid is sealed to the base layer by heat, pressure or both. Heat, pressure or both, दोनों लगाना। Okay, that is called blister package. Next is 16 question number. Which colors used in parenteral formulation? इसमें कौन से कलर पैरेंटल फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो कलर यूज नहीं किया जाता है। कलर विल नॉट बी यूज्ड इन द पैरेंटल फॉर्मुलेशन। ओके, नहीं किया जाता है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर। डिफरेंस बिटवीन वाटर फॉर इंजेक्शन, that short form is WFI, and sterile water for the injection. WFI that means इसका क्या होता है? water for injection, purified water without any pathogens, मतलब pathogens नहीं होना चाहिए, purified water होना चाहिए। Then second is SWFI, that means sterile water for injection, that means purified and sterile water without any pathogens, इसमें pathogens नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, प्यूरिफाइड होना चाहिए, स्टेराइल वाटर होना चाहिए। ओके, यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर। गिव द एग्जांपल फॉर डाइल्यूएंट एंड लुब्रिकेंट्स। डाइल्यूएंट किसको कहते हैं? मैनिटोल डाइल्यूएंट कर सकते हैं, सॉर्बिटॉल, स्टार्च, लैक्टोज, सुक्रोज etc, ये डाइल्यूएंट है। द नेक्स्ट लुब्रिकेंट का जो एग्जांपल है वो मैग्नीशियम स्ट्रेट, कैल्शियम स्ट्रेट एंड स्टेरिक एसिड etc. ओके, next is 19 question number. What is the excipient and give any two example of their uses. excipient क्या होता है और इसका दो example बताना है। uses में excipient is an inactive or inert component of the drug formulation which is helpful for improving the tablet characteristics, that is called excipients. Okay, examples is diluent useful for increasing the bulk volume of a tablet,
also used for the improving the flow property while compressing the tablet. Okay, lubricant is useful for the improving flow property while compressing the tablet. Okay, that is the example. Next is 20 question number. What is paraffin? Paraffin is, they are the metabolic products of microorganisms produced from living or dead microorganisms, that is called paraffins. Okay, नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके।